Hello students, how are you? Myself Opik Roy from the Mathematics Icon channel. So in this lecture we will solve different questions from application of trigonometry chapter, and NCERT questions were already solved. Today we will solve some reference questions from the different books from RD and this RS Agarwal also. Okay, so different reference questions are there in the books. Yeah, you can see, but maximum number of questions seems like the NCERT level questions actually. Okay, because if you solve the NCERT, then all these things and all the concepts actually is already covered. No, so some questions are there which may be a little bit tricky. Okay, so just one question I am telling: a bridge across a river. A bridge across a river makes an angle 45 degree with the river bank. Okay, as shown river bank. Okay, if the length of the bridge across the river is 150 meter, what is the width of the river का width कितना है? ठीक है, रिवर का विड्थ कितना है? तो यहां पर बोला गया एक रिवर है, रिवर के ऊपर से एक ब्रिज गया है अक्रॉस द रिवर, एंड दिस ब्रिज मेक्स एन एंगल 45 डिग्री with the bank of the river. Okay, now you need to find the width of the river. Okay, so क्वेश्चन यहां पर मैं स्क्रीन में दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लो. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फिगर थोड़ा ड्रॉ कर लो. सपोज देखो ये एक रिवर है. ठीक है, ये एक रिवर है. सपोज ये ब्रिज है और ये रिवर का बैंक 45 डिग्री एंगल बनाया है. ठीक है, और यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींचूं, ये जो पोर्शन है ना, यही पोर्शन डिनोट करता है रिवर का विड्थ, ये पोर्शन. ठीक है, और ब्रिज का, ये तो ब्रिज है ना, ब्रिज का लेंथ 150 मीटर दिया हुआ है. तुम्हें निकालना है क्या, विड्थ ऑफ द रिवर. बस सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट लिटिल बिट ट्रिकी है और कुछ नहीं. यहां पर लिखो ए बी सी फॉर ट्राइंगल ए बी सी, फॉर ट्राइंगल ए बी सी 10 45 डिग्री. यहां पर 10 तो होगा नहीं, क्यों यहां पर 10 यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग 10 then you have to deal with the base and the height as well. Okay, but here base is not given, here hypotenuse part and height is given. So I think you should use some trigonometric expressions where the height and the hypotenuse, these two things are used. So I think sine. Okay, so sine 45 degree equals to height by hypotenuse, that means AB by AC. तो यहाँ पर 1 by root 2. AB मतलब यहाँ पर कितना है, AB तो हम लोग निकालेंगे, और AC मतलब 150. दैट इज AB इक्वल्स टू 150 बाई रूट 2. ऊपर नीचे अगर रूट टू से मल्टीप्लाई करें तो इधर हो जाएगा 150 रूट 2, नीचे 2 से 150 काटेंगे तो 75. दैट मीन्स जो विड्थ ऑफ द रिवर निकलेगा वो है 75 रूट 2 मीटर. सो विड्थ ऑफ रिवर 75 रूट 2 मीटर. ठीक है, ठीक है. फिर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्क्रीन में देखो.
A tree 12 meter high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. Okay, at what height from the bottom the tree is broken by the wind? ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, हैं आप लोगों को पता है कि नहीं? वेदर यू नो दिस थिंग्स आई डोंट नो, बट वी हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो यहाँ पर एक ट्री है, सो फॉर द strong storm is there and that's why the tree is broken at the some height from the ground level, but we don't know the height. तो that means ये एक ट्री है, ये ग्राउंड है, ये ट्री है. टोटल ट्री का लेंथ हम लोग जानते हैं 12 मीटर, बट एट सम पॉइंट बाय द स्टॉर्म दिस ट्री इज ब्रोकन and the top portion of the tree touches the ground here. It means this portion and this portion length same. So but the question is what? We don't know at what height of the tree is broken. Okay, तो that means ये जो है ना x मीटर ले लेते हैं, तो इस पोर्शन को बोला जाएगा 12 माइनस एक्स मीटर. दैट मीन्स ये पोर्शन भी होगा 12 माइनस एक्स मीटर. तो जितना टूट के गिरेगा वही तो लेंथ होगा ना इसका. तो ए बी सी, तो फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंगल कितना बोला गया है? एंगल 60 डिग्री ना, 60 डिग्री. एंगल जो है वो 60 डिग्री है. तो दैट मीन्स ये चीज निकालना है, ये गिवन है. हाइट निकालना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो यहां पर तो शायद साइन 60 यूज करना ही इजी होगा. हाइट बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज ए बी बाई 12 माइनस एक्स. तो साइन 60 मतलब साइन 60 कितना होता है? √3 बाई 2 और ये x बाई 12 माइनस एक्स. डायगोनल मल्टीप्लीकेशन 12 √3 माइनस √3x इक्वल्स टू 2x. तो 2 कॉमन लेंगे, 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 12 √3. ठीक है, x कॉमन लेंगे 2 प्लस √3 दैट इज 12 √3 बाई 2 प्लस √3. लो x का वैल्यू मिल गया, बट थोड़ा पेचीदा मिला है कि नहीं. तो यहाँ पर एक काम करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, देखते हैं थोड़ा इजी होता है कि नहीं. ठीक है, x 12 √3 ऊपर नीचे 2 माइनस √3 देके मल्टीप्लाई करते हैं. इसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन मेथड. ये आप लोगों ने क्या होगा, यू माइट हैव डन इन द जूनियर क्लासेस ऑल्सो. ओके, तो 12 √3 2 माइनस √3 बाई 4 माइनस √3 होल स्क्वायर. ठीक है, तो x, तो ये क्या होगा 12 √3 2 माइनस √3. ठीक है, तो ये है x का वैल्यू मिल गया. तो मुझे निकालना क्या था एक्चुअली मुझे क्या निकालना था? एट व्हाट हाइट ऑफ द, अच्छा x का वैल्यू निकालना था यहां पर. ठीक है, एट व्हाट हाइट मतलब ये तो मीटर, तो यही तो निकालना था, बस हो गया. सो x इक्वल टू दिस, दैट मीन्स एट दिस हाइट द ट्री वाज ब्रोकन. ठीक है, ठीक है ना. फिर
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन at a point on level ground, ठीक है, the angle of elevation of the vertical tower is found to be its tangent 5/12. On walking 192 meters towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Very interesting question. क्वेश्चन स्क्रीन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक टावर है, ग्राउंड, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वी डोंट नो द एंगल ऑफ एलिवेशन, ले लेते हैं उसको थीटा, ए बी सी. अब नाउ दिस मैन हु इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, ही वॉक्स 192 meter towards the tower. That means this length is 192 meter. Then again the angle of elevation is something, so theta 5, ठीक है. Now we need to find the height of the tower. Tower का height निकालना है, we don't know, that means we will have to assume, and this part we also don't know these things, this length x meter. Okay, so this is the question. यहां पर एंगल भी नहीं पता, हाइट भी नहीं पता, ये एक्स भी नहीं पता, बट वन थिंग इज गिवन, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स दिस थीटा एंगल है, उसका टेंजेंट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. तो लिखो हियर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा हो तो टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, टेन थीटा क्या हुआ, 5/12 गिवन है. देखो 5/12, इक्वेशन नंबर 1 दो, 10 साई इक्वल्स टू दूसरा कुछ गिवन है 3/4 टेंजेंट, ठीक है. अब आओ, नाउ फ्रॉम 1 मुझे क्या निकालना है, h, तो 10 थीटा 5/12. अब बोलो 10 थीटा उसको क्या लिख सकते हैं, हाइट बाई बेस, दैट मीन्स h बाई x प्लस 192, ये हाइट बाई बेस, ठीक है ना. वो देखो 10 थीटा, ये पूरा हाइट है, ये पूरा बेस है, इक्वल्स टू 5/12. डायगोनल मल्टीप्लाई करो 12h, ये काम कर सकते हो, हाँ 12h इक्वल्स टू 5x प्लस 5 इंटू 192 ना, 0, 5 to the 10, 0, 960, ठीक है. तो 5x इक्वल्स टू 12h माइनस 960, ठीक है. तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 12h माइनस 960 बाई 5. इसको इक्वेशन नंबर 3 दो. फिर फ्रॉम 2 10 साई 3/4, 10 साई ये गिवन है कि नहीं, 10 साई, हाँ, तो 10 साई हाइट बाई बेस h बाई x 3/5. देखो तो हाइट बाई बेस 10 साई, अगर ये एंगल लूँ तो देखिए ये ट्राइंगल, इसमें हाइट h है, बेस x है, तो फॉर्मूला तो वही है, हाइट बाई बेस लिखा है मैंने, हाइट बाई बेस. तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूँ
5h/3, राइट। ये इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों में ही तो h का x का वैल्यू है ना, ये भी x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू। कैन यू मेक देम इक्वल? कैन आई राइट देम इक्वल? बिकॉज बोथ आर द वैल्यूज ऑफ x ओनली। ओके, तो दोनों की इक्वल लिखो, यहां से ही तुम्हें h का वैल्यू मिल जाएगा। सो फ्रॉम 3 and 4, 12h minus 960/5 equals to 5h/3. Diagonal multiplication, 36h minus 960 into 3 equals to 25h. 36h minus 25h equals to 0, दिस। तो लो h का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एकदम सिंपल है। और यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है, 3/5 नहीं 3/4 है ये, 3/4, दैट मीन्स 4h/3 है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पर शायद कैलकुलेशन में 4h/3 एंटर करो, 4h/3, 4h/3, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 4h/3 होगा, ठीक है। तो ये 20 होगा, तो ये 20, दैट मीन्स ये 16, दैट मीन्स h इक्वल्स टू 2880/16, दैट इज आंसर मिलेगा तो इसका वैल्यू है 180 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर, height of the tower is 180 मीटर, ठीक है, ठीक है। Then next, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का हाइट डिटरमाइन करना है। इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस, अननोन डिस्टेंस, वी डोंट नो, अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री and at a distance 10 kilometer further from the mountain along the same line angle of elevation is 15 degree. तुम्हें डिटरमाइन हाइट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का हाइट डिटरमाइन करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक माउंटेन है, माउंटेन के सामने एक पॉइंट है ग्राउंड लेवल में, दैट मीन्स ग्राउंड के ऊपर, ये माउंटेन, यहां पर एक पॉइंट है, कितना दूर है हम लोग नहीं जानते, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला गया इस पॉइंट से तुम 15 किलोमीटर पैदल चल के उधर गए, दूसरे पॉइंट में गए। अब उस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 15 डिग्री है कि नहीं। हाइट ऑफ द माउंटेन वी डोंट नो, ये जो है ना ये भी हम लोग नहीं जानते। तो यहां पर बोला गया हाइट ऑफ द माउंटेन तुम्हें निकालने के लिए, माउंटेन का हाइट ये 10 किलोमीटर है, सॉरी ये 10 मीटर है, माउंटेन का हाइट तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करो। हियर टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू फॉर ट्राइंगल ए बी डी, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू हाइट बाय बेस, that means 1/√3
एच बाई एक्स, दैट इज एक्स इक्वल्स टू थोड़ा एच रूट थ्री एच, एक्स का वैल्यू रूट थ्री एच। अगेन फॉर ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो है कि नहीं, तो इसमें 10-15 डिग्री इक्वल्स टू 10-15 डिग्री इक्वल्स टू हाइट बाई बेस। फॉर्मूला स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, हाइट बाई बेस। यहाँ पर देखो ये होगा। अब 10-15 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाला था, 10-15 डिग्री का वैल्यू तो एक्चुअली जनरल मैथ्स में आपको 10-15 डिग्री का वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो एडवांस मैथ्स और क्लास 11 साइंस में अगर पढ़ोगे तो वो मिलेगा। 10-15 लिखो उसको, 10-15 डिग्री इक्वल्स टू 10-45 डिग्री। अच्छा एक फॉर्मूला लिखो, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ 10-15 डिग्री को अगर 45 माइनस 30 लिखूँ, राइट साइड में तो जैसा है वैसे ही रखो, उसको क्या करें फॉर्मूला साइड में लिख लो। तो ये होता है 10a माइनस बी, दैट इज 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b h बाई एक्स प्लस 10, ठीक है। अब 10-45 डिग्री का वैल्यू भी पता है, 10-30 डिग्री का वैल्यू भी पता है, तो बिठाओ h बाई एक्स प्लस 10। तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 h बाई एक्स प्लस 10। तो √3 माइनस 1 एक्स प्लस 10 √3 प्लस 1 इंटू एच, है कि नहीं। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इंटू एच, ये तो लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से ये जो लाइन है, यहाँ से देखो तो x का वैल्यू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इंटू एच माइनस 10, ये लिख सकते हैं। ये भी देखो x का वैल्यू और ये भी x का वैल्यू, दोनों x का वैल्यू अगर मैं इक्वल करूं, इक्वेटिंग दिस टू वैल्यूज ऑफ x, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। तो इक्वेट करो। नाउ x का दो वैल्यू देखो, √3h इक्वल्स टू √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इंटू एच माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ से h का वैल्यू निकालो, √3 माइनस 1 इंटू एच √3 प्लस 1 इंटू एच माइनस 10 इंटू √3 माइनस 1, ठीक है। तो करो इसको, क्या करें अभी, 3 माइनस √3 h √3h प्लस h माइनस 10 √3 प्लस 10, तो 3h 3 माइनस √3h माइनस h √3 प्लस 1 10 1 माइनस √3, ठीक है। तो दोनों से अगर मैं h कॉमन लूँ, 3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 1 माइनस √3। सो h यहाँ पर क्या आ गया, 2 माइनस 2 √3, 10 1 माइनस √3,
है कि नहीं? तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूँ, 1 माइनस रूट 3, उधर 10, 1 माइनस रूट 3, 1 रूट 3 कैंसिल, h इक्वल्स टू शायद 5 मीटर, h इक्वल्स टू 5 मीटर. दैट मीन्स द हाइट ऑफ द माउंटेन इज व्हाट? 5 मीटर. ठीक है, हाइट ऑफ द माउंटेन कितना है? 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. द शेडो ऑफ ए फ्लैगस्टाफ, shadow of the flagstaff is 3 times as long as the shadow, 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle 60 degree. Find the angle between the sun rays and the ground at the time of the longer shadow. तो यहां पर बोला गया द शेडो ऑफ द फ्लैगस्टाफ इज 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meets the ground at an angle of 60 degree. ठीक है, मतलब एक फ्लैगस्टाफ है, थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, हो सकता है कि फिगर देख के थोड़ा क्लियर हो जाए. यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन है, एक फ्लैगस्टाफ है, ये ग्राउंड है, ये फ्लैगस्टाफ का ये जो सन यहां पर है उसका शेडो जो ये है ना, ये शेडो, इस शेडो का लेंथ 3 times होगा. किसका 3 times? यहां पर अगर एक पॉइंट हो, ठीक है ना, मतलब एंगल जब 60 डिग्री हो, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री हो, तब जो शेडो का लेंथ होता है ना उसका 3 times, दैट मीन्स ये इसका लेंथ होगा, दैट मीन्स 3x. ठीक है, अब ये फ्लैगस्टाफ का हाइट हम लोग नहीं जानते. अब बोला गया फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लॉन्गर शेडो. दैट मीन्स ये लॉन्गर शेडो है ना, दैट मीन्स ये ट्वाइस x है. टोटल अगर 3x है तो इस शेडो पोर्शन का लेंथ x होगा, इस पोर्शन का लेंथ ट्वाइस x होगा. तो दैट मीन्स यहां पर ये शेडो का लेंथ किस में ज्यादा है? ये. ठीक है ना, तो ये शेडो का लेंथ के लिए यहां पर जो एंगल होगा वो एंगल का वैल्यू तुम्हें निकालना है. ठीक है, क्योंकि लॉन्गर शेडो, ये लॉन्गर शेडो का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है. तो लॉन्गर शेडो कहां पर होता है? थीटा एंगल में होता है. तो थीटा का वैल्यू तुम्हें निकालना है. तो बस, तो ये नाम दे दो ABCD फॉर ABC. फॉर ABC ट्राइंगल देखो तो क्या है? 10 ABC, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू हाइट बाई बेस, दैट मीन्स √3 इक्वल्स टू h बाई x. तुम्हें निकालना क्या है यहां पर? हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ. नो, ओ फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल निकालना है. अच्छा, ओके, वेरी गुड. तो
h equals to √3x. Now for triangle ABD उसमें tan थीटा इक्वल्स टू हाइट बाई बेस है क्या नहीं? तो यहाँ पर tan थीटा हम लोग नहीं जानते, h का वैल्यू √3x ये जानते हैं, बाई 3x, x कैंसिल, ये 1/√3, दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 आ रहा है। तो 1/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री, बोथ साइड tan कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 30 डिग्री। दैट मीन्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री फॉर द लॉन्गर शेडो। ठीक है, तो ये जो ट्रिकी टाइप का क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यही क्वेश्चंस जो है मतलब आईक्यू क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।